Hello dear students, welcome to the class today. So children, as you know, we are carrying on with the second chapter, Russian Revolution, actually socialism in Europe and the Russian Revolution. So the major points that we have discussed in this chapter till now. First, we understood the concept of socialism. सबसे पहले हमने socialism समझा, where we understood the I won't say struggle, but yes, the point was raised by the liberals, radicals, and conservatives. This point that was raised by them, conservatives तो नहीं involved थे, लेकिन liberals and radicals were there. They said that property owning by in the hands of the few individuals is bad for the economic development of the country. So economic development needs to be in a smooth and proper manner. For that purpose, they have been giving some ideas. They have been giving some points. Isme socialism, when we try to understand, we have understood that some thinkers were there, some philosophers were there. Continuously I'm telling about them because they are the ones who have played a very important role in developing the idea of socialism in Europe. Robert Owen, Louis Blanc, Karl Marx, Frederick Engels, इनकी बात को लेके बातें आगे बढ़ी. Laborers and workers started becoming very powerful, and in a very short span of time रशिया का तख्ता पलट करके रख दिया, and the Russian Revolution had happened October 1917. लेकिन we are not reaching directly to October 1917. What we are understanding is the background. कि आखिर ऐसा क्या हुआ? Please try to understand what I want to say. कि actually what has happened that has led Russia towards such a big revolution. ऐसा क्या हुआ रशिया में जिसके वजह से कि इतना बड़ा revolution हुआ? So this is what we are understanding, dear students, and the changes that had happened in Russia, उसका impact पूरी दुनिया पे पड़ा. पहले भी मैंने बताया है, लेकिन यहाँ पे when we had started, we understood that Russia was ruled by Tsar Nicholas II, the ruler of Russia, and they had a big empire. कहाँ पे रूल कर रहे थे? Area in and around Moscow. Such a big empire. Which places they were conquering, which places they had their base. ये सारे places का नाम थोड़ा याद रखना है. जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, Latvia, Lithuania. I mean, these are the separate states now. Okay. Union of Soviet Socialist Republic, USSR, हम इस तरह से कहते हैं, लेकिन पहले it was Russia. But now the countries have separated itself, लेकिन it had lot of impact on the people, on the common people, and majority of the people who were there, they were following the Christian religion. Muslims bhi the, Buddhists bhi the. One thing that was very prominent, that the Buddhist people were also found there. Look at the expansion of a religion that has originated in India. इंडिया में ओरिजिनेट होके रशिया तक वो लोग पहुंच गए. The people who were following Buddhism. Okay, this is a credit that goes to the religion कि कितना ज्यादा लोगों ने इसको फॉलो किया है, कितना ज्यादा how much the people have respected the religion. Okay, then we try to understand the economy and the society of Russia. जब हमने बात किया, so in the last class what we have discussed is that 85% of population was engaged in agriculture. Yes, 85% engaged in agriculture, so obviously agricultural output would be better. काफी अच्छा agricultural output था. बाकी के लोग क्या कर रहे थे? The other people were working in the industries. Industries were in pocket, found in pockets.
कुछ कुछ जगहों पे इंडस्ट्रीज थी. द मेजर प्लेसेस वेयर इंडस्ट्रीज वेयर फाउंड वाज सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. बड़े बड़े शहरों में ही इंडस्ट्रीज मिल रही थी. छोटे जगह पे इंडस्ट्रीज ओपन करना, बिकॉज लॉट ऑफ रिसोर्सेस आर नीडेड टू ओपन द इंडस्ट्रीज, इसीलिए एनीवेयर एंड एवरीवेयर द इंडस्ट्रीज कैन नॉट फंक्शन. इसके बाद इन दीज इंडस्ट्रीज the development of industries had happened when Russia's railway network extended. Railways was established 1890s में, and more people, because when industries started manufacturing in a proper manner, more people were investing in the industries. Industries में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. Other countries also, foreign investments, just see it is mentioned here. As a result, क्या हुआ? Coal production जो है, पहले जितना coal production हो रहा था, whatever was happening, it doubled, and iron and steel production quadrupled. I had already said doguna and choguna. Got it? That is there. अब क्या था? These industries that were there, the factory workers and craftsmen, जितने भी, the people who were working in the factories and the people who were working as crafts people, जो craft का काम करते थे, they were almost equal in number. लगभग इनका नंबर जो है वो बराबर था. And industry was the private property of industrialists. अब ये समझो कि on such a large scale, when the manufacturing is happening, अब in industries में some changes were to be done. Please understand, production was increasing. उत्पादन बढ़ रहा था, लेकिन वर्कर्स की हालत खराब हो रही थी. Try to understand it in simple. Yes. When the production is increasing, some attention is needed for the workers also. वो workers जो दिन रात industries में काम कर रहे हैं, most industries was the private property of industrialist. अब ये देखो that most industries अभी गवर्नमेंट ने टेक ओवर नहीं किया था. Okay, where प्राइवेट प्रॉपर्टी. ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो थी ना, इंडिविजुअल्स वेर देयर, सर्टेन पीपल वेर देयर हु वेर द ओनर्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज. एंड गवर्नमेंट जो है, इट वाज गवर्नमेंट के पास भी इंडस्ट्रीज थी, लेकिन छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज थी ना, दैट वाज ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स. गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज ताकि टू इंश्योर कि कम से जितना भी पैसा, मतलब कम से कम में भी लोगों को ज्यादा मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क. वर्किंग इन गवर्नमेंट institutions and organizations is always beneficial. So government was owning big industries. ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी गवर्नमेंट ओन कर रहे थे. एंड दे वर सुपरवाइजिंग. अभी क्या था इसमें? मिनिमम वेजेस, लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क वाज गिवन टू दी वर्कर्स हु वर वर्किंग हियर. लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स, जो फैक्ट्री में क्या होता है, इंस्पेक्शन होता रहता है, काम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हाउ मच वर्क इज बीइंग डन, व्हाट इज द वर्क दैट इज बीइंग डन. They could not prevent rules being broken. काफी सारे नियमों का उल्लंघन हो रहा था. Factory owners, factory inspectors saw rules were broken. देखो, in इंडस्ट्रीज में काम करने का कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, और वो अगर ठीक से नहीं फॉलो करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है ना. देयर कुड बी बिग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दैट. So factory inspectors, they were unable to prevent rules that were being broken.
क्राफ्ट यूनिट, स्मॉल वर्कशॉप्स में वर्किंग डे वॉज समटाइम्स 15 आवर्स. ठीक है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट क्राफ्ट यूनिट and small workshops working hours were as long as 15 hours. 15 घंटा काम कर रहे हैं, पता नहीं कब खाते होंगे कब सोते होंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. 24 घंटे में से जो आदमी 15 घंटा काम कर रहा है, कब, व्हाट इज द, हाउ इज ही कीपिंग हिमसेल्फ हेल्दी, क्लीन, and I mean carrying on his work. Working day sometimes 15 compared to the 12, 10 to 12 factories में क्या था, 10 to 12 hours का working था. Accommodation varied from rooms to dormitories. Factory workers were working 10 to 12 hours a day. फिर भी 12 घंटे काम भी तो बहुत मुश्किल है भाई. 10 से 12 घंटे भी अगर काम कर रहे हैं तो भी तो वर्किंग आवर्स आर टू हाई. प्लीज अंडरस्टैंड इट इन दिस मैनर. स्टिल the working hours are, to be compromised. Accommodation varied from rooms to dormitories. Accommodation varied from rooms to dormitories. Rooms क्या होता है कि स्मॉल रूम्स आर देयर. एक रूम में 4 से 5 लोग ही स्टे कर सकते हैं. 10 to 4 to 5 people can only stay. Dormitories are big ones. Some pictures of dormitories are given there in your book. I'll be showing you the dormitories. Got it? How big the dormitories were, this we will be understanding after seeing it. So छोटे छोटे रूम्स भी थे, बड़े बड़े डॉर्मिटरीज भी थे, जहां पे एक बार में 50 to 100. इट्स अ बिग हॉल. डॉर्मिटरीज का मतलब है बिग हॉल, जिसमें कि पीपल आर टेकिंग रेस्ट. जब भी काम से छुट्टी मिलेगी तो आके वहां पे रेस्ट ले सकते हैं अपना. मतलब एकोमोडेशन वॉज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द इंडस्ट्री ओनर्स. ओनर्स जो थे वो एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे थे. वर्कर्स, they are also divided into social groups. In workers में भी ना there was lot of division. The people who are working in the industries, उसमें भी according to the work the category was decided. Please understand. The workers were divided into categories, so you need to understand what were these categories. We need to be very clear on that. So workers were divided in social groups. सोशल ग्रुप्स में वर्कर्स को डिवाइड किया गया था. कुछ some of them were had strong links with the village. जिस विलेज से आए हैं, which they had come. Others had settled in cities permanently. Some workers, गांव से, देखो आप भी शहर में रहते हो लेकिन गांव से जड़ें हमेशा जुड़ी हुई होती हैं. ठीक है. Some workers had strong links with villages. ठीक है. मतलब खुद यहां रह रहे हैं लेकिन विलेज में फैमिली है. तो भाई आदमी जो भी काम करता है फैमिली के लिए करता है, अपने लिए कौन काम करता है? Everybody and anybody who is working, the major aim of that person is to give happiness to the family, isn't it? So others had settled in cities permanently. कुछ लोग विलेज छोड़ के पूरी तरह से सिटीज में आ गए थे. Others have settled in cities permanently. ठीक है.
परमानेंटली सिटीज में सेटल तो कर गए हैं, लेकिन स्टिल द सम प्लेसेस द प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम, कि सिटीज तो आ गए हैं लेकिन स्टिल हैविंग टोटली कट ऑफ फ्रॉम द विलेजेस वाज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आई यू अंडरस्टैंडिंग? सिटीज में रह रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं से जड़े थी। वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे वर डिवाइडेड। सोसाइटी, जो ये सोशल ग्रुप्स बने हुए थे ना, प्लीज अंडरस्टैंड, इट वाज अकॉर्डिंग टू द स्किल। ओके, वर्कर्स वेर डिवाइडेड according to their skills। कैसे काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही इनका डिवीजन हुआ था। एंड जैसे मेटल वर्कर्स आर देयर, मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड देमसेल्व्स अरिस्टोक्रेट्स। वो अपने आप को सबसे, दे वर गिवन मैक्सिमम रेस्पेक्ट। जिस तरह का काम कर रहे हैं उसके हिसाब से सोसाइटी में डिसाइड होता था हु इज मोस्ट रेस्पेक्टेबल एंड हु इज लेस रेस्पेक्टेबल। कौन सबसे ज्यादा इज्जत के लायक है और कौन थोड़ा सा कम इज्जत के लायक है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। सो मेटल वर्कर्स वेयर लाइक अरिस्टोक्रेट्स। सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता था मेटल वर्कर्स को। मेटल वर्कर्स वेयर लाइक अरिस्टोक्रेट्स, topmost people। ओके, एंड देयर, क्योंकि ज्यादा मेहनत, मेटल वर्कर्स बहुत मेहनत करते थे। ये नहीं कि बाकी के लोग मेहनत नहीं करते थे, बट they were the ones whose skills, to develop the skills they have to take proper training। बाकी लोग कम पढ़ के भी, कम ट्रेनिंग के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिनको मेहनत लग रही है, द पीपल हु हैड मैक्सिमम ऑफ हार्ड वर्क and they were involved into some or the other kind of activities, they were the metal workers, aristocrats। ठीक है, टॉप मोस्ट पीपल इन द ग्रुप में सबसे हाईएस्ट पोजीशन इन्हीं लोगों को मिली हुई थी। अब क्या हुआ, विमेन ऑल्सो वेयर वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज। घर भी संभाल रहे थे एंड दे वेर वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज। 31% ऑफ फैक्ट्री लेबर वॉज विमेन, लेकिन दे वर पेड लेस देन मैन। 31% ऑफ लेबर फोर्स in industries were women। ये जितना भी लेबर फोर्स है, all this labor force, they were all involved and paying less, were paid। काम मर्दों से ज्यादा कर रहे हैं लेकिन सैलरी मर्दों से कम मिल रही है। क्यों? अभी देखो, अभी हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया। दिस सोशल सेग्रीगेशन हैज बीन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज इन द वर्ल्ड। दुनिया के बहुत सारे जगहों पे इस तरह का भेदभाव औरतों के साथ किया जाता है, विच इज नॉट प्रॉपर। काम आप उतना ही ले रहे हो, बल्कि उससे ज्यादा काम ले रहे हो, लेकिन फैसिलिटीज देने के टाइम में एंड पैसे देने के टाइम में मेन से कम पैसे आप दे रहे हो। दिस वॉज समथिंग ऑब्जेक्शनेबल। इसको अप्रूव, कैसे इसको हम अप्रूव कर सकते हैं? हाउ कैन वी अप्रूव दिस थिंग? गॉट इट? सो डिविजन वॉज देयर अमंग वर्कर्स। इट शोड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। ठीक है, डिविजन अमंग वर्कर्स, जिस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, वर्कर्स वेयर शोन थ्रू ड्रेस ऑल्सो, मतलब जो कपड़े पहन रहे हैं, एंड बिहेवियर। मेटल वर्कर्स हैं तो वो तो एकदम मतलब ऐसा दिखाएंगे कि
हम तो मालिक मालिक के जैसे ही अपने आप को समझते थे, अपना बराबरी जो है वो मालिक से ही करते थे, क्योंकि उनको पता था कि जिस तरह का काम वो कर रहे हैं वो बहुत लिमिटेड लोग कर सकते हैं. Very limited people can do that kind of a work, the kind of work that the metal people were doing, metal workers were. कुछ लोगों ने क्या किया, they formed their own association, अपना ग्रुप बना लिया at the times of unemployment और financial hardship. लेकिन इस तरह के एसोसिएशंस बहुत कम थे, लोग बिजी थे काम करने पे, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं. हाउ विल दे मेक एसोसिएशंस? सम पीपल हैव मेड द एसोसिएशंस. कुछ लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया कि भैया अगर काम चला गया या फिर देयर इज सम प्रॉब्लम और सम मनी इज नीडेड, देन दे शुड बी एक्टिव. ऐसा लेकिन था नहीं, हो नहीं पा रहा था. गॉट इट? कोशिश करते थे, दे वर ट्राइंग हार्ड that these associations should function properly, लेकिन जितना स्मूथली काम होना चाहिए था उतनी स्मूथली काम हो नहीं रहा था. Got it? अब देखो, workers were there, division had happened, workers did unite to strike work. अब क्या हुआ भाई? देखो, सहने की भी एक लिमिट होता है. There has to be a limit to tolerance. ठीक है, सोशल ग्रुप्स हो गए, मेटल वर्कर्स सबसे ज्यादा, विमेन आर देयर. लुक एट द सेग्रीगेशन एंड लुक एट द इनजस्टिस. आई हैव टू यूज दिस वर्ड, इनजस्टिस. ठीक है. सो डिस्पाइट डिविजन्स, भाई वर्कर्स तो बटे हुए थे ना, डिविजन्स वेर देयर. वर्क का अब क्या हुआ, अपनी मांग को लेके वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक. अब इन्होंने क्या किया, हड़ताल करना शुरू किया. दे स्टार्टेड डूइंग टेकिंग स्टेप्स, जहां पे कि दे हैव टू पुट अप देयर डिमांड्स एंड दे हैव टू पुट अप देयर डिमांड्स इन अ स्ट्रॉन्ग मैनर. कोई सुनने को तैयार नहीं था. So when they disagreed with the employers about dismissals or work conditions, any employer, any person who is working in the industry, बिना किसी कारण के उसको कभी भी निकाल दिया. Why? So क्यों हो रहे थे ये स्ट्राइक्स, क्यों कर रहे थे? Please understand that strikes were done to oppose dismissals. Dismissals means किसी को भी कभी भी नौकरी से निकाल दिया. And poor working conditions. Poor working conditions. लोगों का काम करने की जो हालत थी बहुत ही बुरी थी. So the people needed to work hard. इतना 15-15 घंटे काम करने के बाद भी अगर किसी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है या किसी के साथ मिसबिहेवियर होता है, दिस वॉज नॉट एट ऑल अप्रूव्ड. तो स्ट्राइक्स, अब क्या हुआ, स्ट्राइक्स स्टार्टेड हैपनिंग एंड फ्रीक्वेंटली. अभी एक हफ्ते में स्ट्राइक था, फिर से स्ट्राइक हो गया इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. 1896 से 98 साल के बीच में देयर वेर लॉट ऑफ स्ट्राइक्स. बिटवीन 1896 to 1897, there were frequent strikes. बार स्ट्राइक्स हो रहे थे. frequent strikes in the textile industry. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स बढ़ गई एंड दिस वाज एन अलार्मिंग सिचुएशन. देखो, स्ट्राइक होता है तो किसका नुकसान है? इट इज द वर्कर्स ऑल्सो एंड द ओनर्स. ओनर्स वेयर इनटू अ टफ पोजीशन. अब उनको समझ में आ रहा था कि वर्कर्स की फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ानी पड़ेगी. 15-15 घंटा आप काम करा रहे हो भाई साहब. 15 hours is not a small time. It's a big hour to work. As a result,
टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स हुए. 1902 में स्ट्राइक्स हैपेंड इन द मेटल इंडस्ट्री. एंड गांव में क्या हो रहा था? इन द कंट्री साइड peasants cultivated most of the land. लेकिन nobility, crown, orthodox church, they owned large properties. काम कौन कर रहा है? Peasants, they are earning less money and ऐश की जिंदगी कौन जी रहा है? The nobility, the crown means the king, the church. अरे चर्च, सबसे बड़ी बात ये है, पूजा पाठ करने वाले लोग, उनको इतनी फैसिलिटी क्यों मिलनी चाहिए? आप भगवान के लिए अपना लाइफ यू हैव ऑलरेडी डेडिकेटेड. व्हेन द लाइफ इज डेडिकेटेड टू गॉड, जस्ट सर्व द गॉड. व्हाई आर यू लुकिंग फॉर privileges? There is no need of privileges. Serving God, anybody and at any point of time can serve God. भगवान की सेवा आप कभी भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं. Why is the need of money for that? उसके लिए पैसे की जरूरत क्यों पड़ रही है? ओके, सो इन द कंट्री साइड peasants cultivated land and nobility, king, church enjoyed. मेहनत गरीब से करा रहे हो, एंजॉयमेंट खुद ले रहे हो. ये क्या तरीका है? What is this method? This was a wrong practice that was going on here. So, getting the people to work, आप लोगों से काम कराइए, कोई बात नहीं है, there is no problem in that. लेकिन but then facilities also have to be given to the common people. उन peasants के लिए कुछ अच्छा भी तो करिए. Why not? They were also deeply religious. भगवान के नाम पे चूंकि पैसे देने हैं, तो peasants were very religious people. Were very religious. बेचारे धर्म के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी तरह से लोगों का साथ दे रहे हैं, लेकिन few cases में they had no respect for the nobility. क्या नहीं, ठीक है, आप चर्च के लिए भी पैसे ले रहे हो, आपको भी हम पैसे दें और चर्च के लिए भी पैसे दें. They did not like it. They did not approve it. उनको लगा ये चीजें गलत हो रही हैं. And now nobility, the people who were working with the czar, king के साथ जो काम कर रहे हैं, खूब दादागिरी दिखाते थे. They used to have a very lavish life. Peasants started opposing it. यहां से किसानों ने क्या किया? इनको भी अपोज करना शुरू किया. फ्रांस का एग्जाम्पल ऑलरेडी था. ऑलरेडी द पीपल हैव गॉट द एग्जाम्पल ऑफ फ्रांस एंड द मूवमेंट एंड द स्ट्रगल कैरिड ऑन फर्दर. गॉट इट? इसके बाद क्या हुआ? इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू चिल्ड्रन. I'll show you some very beautiful pictures in the book itself. Come, let's see. Actually, students, I wanted to show you these pictures. These pictures are very clearly showing the condition of the peasants in Russia. Many people were employed, but many people were unemployed also. Unemployed people who were there in the pre-war times in St. Petersburg. Pre-war time means before First World War. 1914 के पहले क्या होता था? इतनी गरीबी थी. There was so much of poverty in Russia that people hardly found any occupation and people hardly found a way to carry on their lives. तो लोग क्या करते थे? चैरिटेबल किचन चलाते थे. चैरिटेबल किचन मीन्स वही जहाँ पे कि दान पुण्य करने के लिए ना खास कि लोगों को खिलाएंगे तो पुण्य मिलेगा. दिस काइंड ऑफ किचन्स वेर रनिंग. ये देखो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड पीजेंट्स वेर देयर, जिनको काम नहीं मिल रहा है, वो यहाँ पे किसी तरह से खा के अपना गुजारा चलाते थे. गॉट इट? एक और पिक्चर है चिल्ड्रन, प्लीज सी. आई टोल्ड यू
that the people who were working in the industries, जो industries में काम कर रहे हैं, they used to stay and sleep in these bunkers. ये देख रहे हो डॉर्मीट्रीज जिसको हम कहते हैं डॉर्मीट्रीज. सो मेनी पीपल आर स्टेइंग एट दिस वन प्लेस. These were the dormitories. Got it? And they slept in shift. 2 घंटे के लिए सोना है, 3 घंटे के लिए सोना है. Imagine that kind of a life. And their families with them. सिर्फ arrangement was made by the industry owners. Owners ने arrangement तो कर दिया, लेकिन क्या कर दिया? Are you getting my point? That's the point, my dear students. Got it? So this is what I wanted to show you. Next we will be continuing in the next class. Till then, children, thank you so much and all the best to you.